ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا, 8-10 منٹ. یہ ڈیٹیل آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ کڑے وقت میں ہی انسان کو دوست کی پہچان ہوتی ہے, مگر افسوس کہ ہماری قوم کے کچھ نادان افراد اپنی چھوٹی سوچ اور حسد کے مارے اندھے ہو چکے ہیں. ان کی مثال ایسے انسان کی ہے جو اسی شاخ کو کاٹ رہا ہوتا ہے جس پر وہ خود بیٹھا ہوتا ہے. میں عموماً فضول اور بے معنی اعتراضات کے جوابات دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, کیونکہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. میرا پورا وقت عزاداری اور اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ہی نکل جاتا ہے. اس کے علاوہ مجھے اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے, کیونکہ نوحہ خوانی میرا پیشہ نہیں بلکہ میرا شوق ہے. کیونکہ نہ میں کسی سے نوحہ خوانی کے لیے پیسے لیتا ہوں اور نہ اپنے کسی پروگرام کے لیے کسی سے فنڈ مانگتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک شخص دنیا کے کسی کونے سے مجھے بتا دے اگر ان 30 سالوں میں نوحہ پڑھنے کے لیے انجمن عدل و ثقافت سے اگر پیسے لیے انجمن عدل و ثقافت نے, یا یہاں تک میں کنوینس کے پیسے بھی نہیں لیتا, کیونکہ میں عزاداری میں خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ جس بولا کا میں ذکر کرتا ہوں ان کے صدقے سے میرا رب مجھے نوازتا ہے, اور بے شک میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے. آج ان باتوں کی نوبت اس لیے پیش آئی کہ ہماری قوم کے کچھ شرپسند افراد بجائے یہ کہ اس بات پر خوش ہو کہ ان کا ایک بندہ جو اتنے برسوں سے ان کے ہر مسئلے کے حل کے لیے پیش رہتا ہے, چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ ہو یا مسنگ پرسن کا معاملہ ہو یا جلوسوں یا تاکروں پہ پابندی کا مسئلہ ہو یا غلط FIR ہو یا عباس ٹاؤن بم بلاسٹ, غرض یہ کہ کسی بھی طرح کہ مشکل وقت میں آگے بڑھ کر اپنی قوم کی نمائندہ بن کر گورنمنٹ کے اداروں سے بات چیت کر کے اپنے سارے تعلقات اور ریسورسز استعمال کر کے ان کو حل کرواتا ہو. اگر آج وہ بندہ حکومت کی آفر اس لیے قبول کرتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کے کام آ سکے, تو وہی شرپسند لوگ اس کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں. اگر مجھے سیاست میں ہونے کا اتنا شوق ہوتا تو میں 2004 میں ہی جنرل پرویز مشرف کے دور میں آ چکا ہوتا, اس لیے کہ مجھے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے آفر آ چکی تھی اور ابھی تک آ رہی ہے, مگر میں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی, کیونکہ اس وقت علامہ طالب جوہری صاحب حیات تھے اور ہر مشکل وقت میں ہماری قوم کی سرپرستی کیا کرتے تھے. اب وہ ہم میں نہیں ہیں. ان کے جانے سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. حکومتی معاملات وہ بہت خوش اسلوبی سے سنبھال لیا کرتے تھے, اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر بھرپور اعتماد کیا کرتے تھے اور تمام اہم معاملات میں انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا نمائندہ بنا کر حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا. میں ہمیشہ ان کا تھنک ٹینک کا حصہ رہا ہوں اور علامہ صاحب ہمیشہ ہماری بات سنتے تھے. جیسا کہ جب عباس ٹاؤن بم بلاسٹ ہوا تو علامہ طالب جوہری صاحب نے جو ٹیم بنائی, اس ٹیم کا انچارج مجھے بنایا, اور ہماری ٹیم نے ہی حکومت کے ساتھ سارے مذاکرات کیے, اور صرف 14 ماہ کے قلیل عرصے میں ہم نے سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے 2 بلڈنگیں 809 تعمیر کروائیں. یہ ایک ریکارڈ ہے جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بم بلاسٹ کے بعد نہیں ہوا. وہ لوگ جن کے گھر اور دکانیں پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گئے تھے اور وہ بالکل روڈ پر آ گئے تھے, ان کو دوبارہ آباد کیا, اتنا بڑا کام حکومت سندھ کے تعاون کے بغیر ناممکن تھا. ہم لوگوں نے علامہ صاحب کے ہاتھوں سے گھروں اور دکانوں کے اصل مالکان کو ان کی نئی چابیاں دلوائیں. ہم امن پسند قوم ہیں, ہماری قوم نے ہمیشہ قربانیاں ہی دی ہیں, کبھی دہشت گردی کا حصہ نہیں بنے, اس لیے ہم نے اپنے تمام جائز مطالبات ہمیشہ مذاکرات ہی کے ذریعے بنوائے اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح بنوائیں گے. دوسرا اہم مسئلہ مسنگ پرسن ایشو ہے, جس کو حل کرنے کے لیے ہم نے مذاکرات کے ساتھ دھرنوں میں بھی بھرپور شرکت کی کر کے ان کو کامیاب بنایا. کچھ سال پہلے جب نمائش میں شیعہ مسنگ کلنگ پر دھرنا ہوا تو ظفر عباس میرے پاس آئے اور کہا, نقی بھائی لوگ پریشان ہیں, پورا دن بیٹھے رہتے ہیں مگر ناشتے کھانے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے, تو آپ ہمارا ساتھ دیں.
तो फिर जेडीसी और अंजुमन अब्दुल फ़क़ार हमने मिलकर सारा बंदोबस्त किया, फिर और लोगों ने भी साथ दिया हमारा, और फिर अपनी तमाम अंजुमनों को नौखानी के लिए वहाँ बुलाया। ऐसे ही धरने कामयाब नहीं हो जाते, अपनी सारी रिसोर्सेस इस्तेमाल करना पड़ती हैं। और कायद के मज़ार पर आज का जो धरना हो रहा है, इसमें जब मैं पहुंचा तो कुछ लड़कों ने मुझ पर एतराज़ किया कि मैं तीसरे दिन क्यों पहुंचा, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि MTM के बहैसियत सदर MTA ये मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे किस दिन जाना है। मैं किसी भी ऐरे गैरे को जवाब दे नहीं। इसी तरह मिसिंग पर्सन का धरना जो PIB में सदर साहब के घर के पास रखा गया था, 5 रोज गुजर गए थे मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर जब हम धरने में गए और मेरी मुलाकात को मुतासरा फैमिली से हुई जो दर्द से बेहाल थी, तो हम अल्लामा तालिब जौहरी के पास गए और तमाम सूरत हाल से आगाह किया। हमने वहीं बैठकर एक लाए अमल तरतीब दिया, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट की हाई कमांड खुद चलकर अल्लामा साहब के घर आई और उनसे इस मसले को हल करने का वादा किया, और दूसरे दिन ही 12 बंदों के रिलीज ऑर्डर अल्लामा साहब की खिदमत में पेश किए और बाकियों को भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज किया गया। जो मिसिंग पर्सन रह गए थे, इनके सिलसिले में सगीर आबिद साहब, सुहेल भाई और राशिद रिजवी की टीम की ख्वाहिश के मुताबिक सदर आरिफ अलवी के घर में एक मीटिंग रखवाई अल्लामा साहब ने, जिसमें मुझे और अबरार भाई को अल्लामा साहब ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। इस टीम ने वहाँ हुकूमत से मुज़ाकरात किए, जिसके नतीजे में काफ़ी लोगों को रिलीज़ किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी कोशिशों और मेहनतों का सिला हमें ये मिला कि हमारे खिलाफ साजिशों के जाल बिछाए गए, फेसबुक पर उल्टे सीधे वीडियो क्लिप चलाकर अफवाहें फैलाई गई। अल्लाह का शुक्र है कि फिर उन्हीं लोगों ने वीडियो क्लिप पर फिर हमसे माफिया भी मांगी और कबूल किया कि हमने कुछ लोगों के बहकावे पे आकर आपके साथ ज्यादती की और अफवाहें फैलाई ताकि लोग आपसे बदजन हो जाएं। वो क्लिप अभी भी नेट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं, इनकी साजिशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं रही। 21 रमज़ान के जुलूस के हवाले से भी आपको याद होगा इतनी दुश्वारियाँ पेश आईं। इसी सिलसिले में वज़ीर आला हाउस में हमने मीटिंग भी की और हमने भरपूर कोशिश की कि खुश असलूबी से मामला तय हो सके, मगर एंड टाइम पर पाबंदी लगने के बाद हमने MTA और अल्लामा नादिर अब्बास ने फैसला किया कि जुलूस हर सूरत में निकलेगा। इसकी वजह से हमारी और जुलूस के तकरीबन 300 शुरका की FIR काटी गई और लोग भी उठाए गए। अल्लामा नादिर अब्बास और हमने मिलकर रात ही को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने तमाम शुरका जुलूस से जेलों में मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी कि पूरी कौम आपके साथ है। फिर उनकी FIR ख़त्म करके इनको रिलीज़ भी कराया। हमने आखिर तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। आजकल हालात ये हैं कि मुझे रोज़ 20 फ़ोन आते हैं। कोई रोज़गार के लिए परेशान है, तो किसी के पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, तो किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास राशन के लिए पैसे नहीं है। इतने मसाइल में लोग घिरे हैं। कुछ बेचारे सफ़ेद पोश लोग जो कुछ कहते भी नहीं मगर बहुत परेशान हाल है। मैं आखिर किस की परेशानी दूर कर सकता हूँ? ये मेरे अकेले जैसे कि बस की बात नहीं। ये काम हुकूमत का है कि ये वो लोग को रिलीफ दें, रोजगार के मौके फराहम करें और इलाज मुआवजा के लिए सहूलत दें। जब सईद गनी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी, तो उस वक्त मैंने उनसे कहा कि मेरा ताल्लुक़ आज़ादारी से है, सियासत से नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहकर सोचने पर मजबूर किया कि आप हर मौके पे अपनी कौम के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात करते हैं, क्या ये अच्छा नहीं कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करके ज़्यादा मौसर तरीके से लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ तमाम मामलात में जायज़ मामलात में ताउन करेंगे। फिर मैंने कुछ करीबी दोस्तों से मशवरा करके इसी नियत से पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। मेरे बस में जहाँ तक हो सकेगा मैं आवाम के मसाइल हल करने के लिए काम करूँगा। ये बात सभी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और सिंध में इन्हीं की हुकूमत है।
सईद गनी साहब ने भी कहा कि हम ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल होने की दावत देते हैं जो काम के लोग हों और काम करते हों। उन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी और मेरे घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शैला रज़ा बाजी और वक़ार मेहंदी से मेरे बहुत पुराने घरेलू ताल्लुकात हैं। इन दोनों की भी काफ़ी अरसे से यही कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूं। मैं इन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और ख़ासकर सईद गनी साहब और उनकी पूरी क़यादत का। इनसे मुस्तक़बिल में अच्छी उम्मीदें रखता हूं और जो भरोसा उन्होंने मुझ पर किया है इंशाअल्लाह इस पर पूरा उतरूंगा। और आप लोगों को भी काम करके दिखाऊंगा। अल्लामा तौलिक जौहरी जैसे बड़े आलिम ने मुझ पर एतमाद करके और तमाम अहम अमूर में मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर जो मुझको इज़्ज़त बख्शी है वो मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। और डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी जैसे मशहूर स्कॉलर और जाकिर ने मुझे हमेशा अपनी मजलिसों और महफिलों में पूरी कौम के सामने मुझ नाचीज़ को सराहा। यहाँ तक कि इनकी बातें 2 वीडियो क्लिप में भी मौजूद हैं कि नकी जैसा ईमानदार बंदा मुझे पूरी कौम में नजर नहीं आता। यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी कीमती लाइब्रेरी मेरे हवाले कर गए कि मैं इसका ख्याल रखूं ताकि लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। मैं इन अजीम उलमा की तारीफ को अपने लिए एक एजाज़ समझता हूँ और इस पर मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। मोहतरम सईद गनी साहब ने भी मुझे इस काबिल समझा कि खुद मेरे घर आकर मुझे अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी। लेकिन हमारे फेसबुक के माहिरीन की राय है कि मुझे अब MTA छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। मुझे माफ़ कर दें कि मैं आपके आला मेयार पर पूरा ना उतर सका। आप मेरा पेज छोड़ दें, मुझे फॉलो करना बंद कर दें। आपकी मेहरबानियाँ। वैसे इन लोगों को शायद ये मालूम नहीं कि अल्लामा इरफान हैदर आबदी और मोहसिन नकवी दोनों पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। मौलाना शेख गुलाम मोहम्मद साहब को भुट्टो साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का पीपल्स पार्टी का सदर बनाया था और उनकी मजहबी खिदमत भी साथ साथ जारी थी। इसी तरह अब्बास कुमैली साहब MQM के सेनेटर थे और जाफरी अलायंस के सदर भी थे। और अली हुसैन नकवी ने PTI में इलेक्शन लड़ा तो क्या उन्होंने MWM छोड़ दी? तो सिर्फ मुझ नाचीज पर इतनी तदकीक क्यों? रही बात इन लोगों की जिनके पास दूसरों पर कीचड़ उछालने के अलावा और कोई काम नहीं, ना इनकी बात की कोई अहमियत है और ना इनके मशवरों की। मेरी आक़िबत की फिक्र में वो कहीं बीमार ना हो जाए। असल में हसद का इलाज किसी के पास नहीं, लेकिन मुझे ये डर ज़रूर है कि जब सिंसियर और काम करने वाले लोगों के खिलाफ इतनी फजूल बातें की जाएंगी तो वो लोग जो मदद के लिए उठने का सोचेंगे भी तो अपना इदारा बदल देंगे। अपना इदारा इसी दिन से डर है जब आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं हो। मैं तो अपना काम करता रहूँगा। मशहूर कहावत है, अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने के लिए रुकेंगे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों शैला रज़ा साहब, डॉक्टर आलिया इमाम साहब, वक़ार मेहंदी साहब, गनी साहब, सबका मैं और जितने भी मेहमान हैं पार्टी के और जितने लोग हैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।